رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين تم یہاں پر لگائے تو صحیح واپس بھی نکل جاتے مر جائے نہ بچے عباس سے پہلے ہی گزر جائے نہ بچے ہائے پیابا
زخمی نہیں تھا جو بے ہوش علمدار کو پایا روتے ہوئے مظلوم نے مظلوم سے پوچھا کس طرح میرے بھائی تو رہوار سے اترا عباس نے رو کر کہا یا فاطمہ زہرا آغوش میں محسن کی طرح اپنے اٹھا کر مخدومہ کونین گئیں مجھ کو سلا کر اس عرض میں فاطمہ زہرا کے دلاڑے رہنے دے میری لاش کو دریا کے کنارے رہت میں بچے جو وہاں پیاس کے مارے کس منہ سے بھلا جاؤں میں خیموں میں تمہارے پہنچا نہ سکا پانی تو کس کام کا سرکار ہائے علمدار ہائے علمدار امام نگران اس اشرہ تنویر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا انعقاد سالہ گزشتہ کی تعلیم سال کی جناب العباس پیر صاحب کی جانب سے کیا گیا سلسلے کی 8ویں مجلس ہے مدارس خطاب فرما رہے حجت الاسلام والمسلمین الجناب مولانا سید امام صاحب اللہ اب میں مولانا موضوع سے گزارش کروں گا کہ ممبر کے تشریف لائیں بل محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحم الله من يخطأ الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين أنس الفقراء والمساكين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا عبد القاسم محمد المعصومين ولعنة الله على الأعداء أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين اللهم لعن أول الظالم الظالم حق محمد وآل محمد وآل تعبير ولا ذلك اللهم لعن الصحابة الذي جعلت للحسين عليه السلام وشائعات وضائعات الأوعية على اور میرے ساتھ ایک سلطان عطا فرما جو میری مدد کرے نصرت کرے وہ سلطان علی ابن ابی طالب علیہ السلام
ان کے مثل کوئی نہیں ہے، اور ان کے مثل جو ہے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور رسول اسلام نے فرمایا یا علی مثل کعبہ، علی آپ کی مثال جو ہے وہ کعبے کی مثال ہے۔ جس طریقے سے کعبہ کہیں نہیں جاتا، لوگ کعبے کے پاس آتے ہیں، اسی طریقے سے علی کسی کے پاس نہیں گئے، لوگ علی سے مسئلہ پوچھنے آئے۔ جس طریقے سے کعبے کی عظمت ہے، یعنی کعبے میں جو ہے کوئی نجس چیز نہیں جا سکتا، کوئی جانور، نجس جانور، حرام گوشت جانور کعبے میں نہیں جا سکتا۔ یہاں تک کہ کعبے میں آپ جو ہے، یعنی جو حدود کعبہ ہے، اس میں آپ جو ہے کسی کو قتل بھی نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی قاتل ہو، اگر حدود کعبہ میں آ جائے تو آپ اسے جو ہے سپاہی ان کے ذریعے جو ہے نکلوا نہیں سکتے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ کھانا بند کر دیجئے، پانی بند کر دیجئے، لیکن جو ہے وہ نکال نہیں سکتے۔ تو نجس یعنی حرام گوشت جانور بھی نہیں آتا، حیوان بھی نہیں آتا حرام گوشت۔ اور جو ہے راضی علیہ سنت کے عالم دین ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک روز جو ہے ہرن چلا اور کتا جو ہے ہرن کو دوڑایا، لیکن جیسے ہی حدود حرم آ گیا تو پھر وہیں پہ کتا رک گیا، ہرن جو ہے وہ حدود حرم ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو حرام گوشت جانور ہیں وہ بھی اپنے حدود کو پہچانتے ہیں، وہ بھی اپنے حد کو پہچانتے ہیں کہ یہ جو ہے ہمارا مقام نہیں ہے۔ یا آپ دیکھیں مشہور واقعہ ہے کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھک گئے کیا؟ آپ تھکے ہیں، ہم تھکے گے، آپ پڑھوا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھنے والے بڑھیا سلام تو سن لیجیے، تھوڑا مقدمہ بنا لیں۔ آپ سوچتے ہیں 2 منٹ کے نقطہ دیں، تو اب آپ دیکھیے مشہور واقعہ سنتے رہتے ہیں کہ مولا کائنات کی قبر جو ہے مخفی تھی، بس جو ہے خاص جو اصحاب تھے، چاہنے والے تھے امام کے، انہیں کو معلوم ہے۔ پھر جو ہے چھٹے امام کے زمانے میں جناب صفوان اور پوچھا، پھر اس کے بعد یہ تمام چیزیں۔ تو ہارون رشید کا جب بادشاہ شکار کے لیے نکلا اور ساتھ میں جو ہے اس کا پالا ہوا کتا بھی تھا، جب شکار کے لیے نکلا اور جب دیکھا کہ ہرن ہے تو پھر جو ہے اپنی شکاری کتے کو دوڑاتا ہے، چھوڑتا ہے۔ اب جب شکاری کتا دوڑا تو ہرن جو ہے اس بلندی پہ آگے رک گیا، لیکن یہ کتا اب آگے نہیں بڑھتا ہے۔ بات بہت لطیف ہے، اب یہ جو ہے کتا آگے نہیں بڑھتا۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ مصروف ہو گیا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد ہرن جو ہے اس پہاڑی سے، اس بلندی سے پھر جو ہے وہ نیچے آ کر جو ہے اپنا کھانے پینے لگا۔ پھر اس نے جو ہے شکاری کتے کو چھوڑا، پھر دوڑایا، پھر جو ہے ہرن جا کر اسی بلندی پہ رک جاتا ہے۔ اب یہ بھی سوچتا ہے کہ آخر بات کیا ہے، ہمارا پالا ہوا شکاری کتا وہاں تک نہیں جاتا، آخر مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے پالا ہے لیکن وہ جو ہے اپنے قدم کو آگے نہیں بڑھاتا۔ اب جو ہے لوگوں سے پوچھا، اب جب لوگوں سے پوچھا معلوم کیا تو ایک بزرگ تھے، کہاں اگر جان کی آواز ہو تو ہم بتا دیں، کہاں بتاؤ آخر وجہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ کہاں یہاں جو ہے رسول کے جانشین کی قبر ہے کہ یہ جو حرام گوشت جانور ہے یہ جو ہے وہاں تک نہیں جاتا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ حیوان بھی پہچانتے ہیں کہ ہماری جگہ کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے۔ یا مثلا جو ہے مولا کائنات کی شہادت کے بعد ایک مرتبہ ایک بادشاہ، عراق کا بادشاہ جو سب کو بلایا، بادشاہ تھا، سب کو بلایا، انہیں جیسا تھوڑا دیر میں رکھیے گا، سب کو بلایا، اس کے بعد جو ہے سوال کرنے لگا۔ تو ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے دادا قتل ہو گئے، کوئی کہہ رہا ہمارا باپ قتل ہو گیا، کوئی کہہ رہا ہمارے خاندان میں فلاں صاحب قتل ہو گئے، یہ قتل ہو گئے، وہ قتل ہو گئے۔ تو بادشاہ نے سوال کیا، یہ بتاؤ کسی نے کسی کو مارا بھی؟ سب قتل ہوئے۔
सब जो है दादा बाबा मारे गए थे, सबको लेकर चला। अब जैसे ही लश्कर लेकर नजफ या अशरफ में वारी हुआ तो नजफ के मोमिनीन ने रोका, लेकिन महाराज लश्कर लेकर गया था, बादशाह था, अब जो है पहुंचा और जैसे ही जरी के करीब पहुंचा, अब मालूम नहीं जरी से क्या निकला, नूर निकला, कुछ उंगलियां निकली, क्या निकला कि दो हिस्से में वही तकसीम हो गया, दो हिस्से में तकसीम हो गया। लेकिन ये मसला नहीं, सुनिए आगे की बात, तकलीफ बात कि दो हिस्से में वही तकसीम हो गया, लेकिन खून का एक कतरा भी बहा, खून का एक कतरा जो है वहां पे नहीं बहा। तारीख है, समझिए तारीख होगी, थोड़ा ढूंढिएगा, और उसको जो है एक जगह डाल दिया, वो जो है पत्थर मिट्टी के मानी हो गया। यहाँ तक कि जानवर गुजरते थे, समझ गया, जानवर भी गुजरते थे, पेशाब वगैरह करते थे, और कुछ दिन बाकी रहा, कुछ दिन तक बाकी रहा, उसके बाद जो है वो खत्म हो गया, खत्म हो गया। तो अब आप देखें कि मालूम ये हुआ कि वो जानवर भी, हैवान भी पहचानते हैं कि हमारा दूर कहाँ है। यही अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है, जो हर मौके पे, हर मरहले पे, हर मंजिल पे, जितने भी सबक अंबिया गुजर गए, हर मौके पे जो है हर एक की मदद की, हर एक की मदद की। तारीख में ये मिलता है कि जब जनाबे नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे थे तो एक जिन आया और आने के बाद कश्ती में सुराख कर रहा था। ये बात बहुत दकीक है, पढ़ के हम आगे निकल जाएंगे, समझना आपका काम है, पढ़ना हमारा काम है। हम माशाअल्लाह सबको नजर बस मौला बचाए। तो वो जो है जनाब नूह की कश्ती में सुराख कर रहा था कि पानी भर जाए, कश्ती डूब जाए। जनाब नूह ने हाथ बुलंद किया, कहा कि परवरदिगार बचा ले, कश्ती में सुराख कर देगा तो जाहिर सी बात है पूरी कश्ती जो है डूब जाएगी। तो जब जनाब नूह ने हाथों को बुलंद किया तो वो जो जिन था बहुत खतरनाक था, तो जनाब नूह ने देखा, उसने भी देखा कि एक नौजवान आया और आने के बाद जो है उसके हाथों को बांध दिया, उसके हाथों को बांध दिया। अब उसके बाद जनाब नूह का दौर गुजरा, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम आते रहे और हर एक के पास जाता रहा, हर एक के पास जाता रहा कि ये हाथ जो बंधा हुआ है ये हाथ खुल जाए। लेकिन सबने यही कहा कि इस हाथ को हम नहीं खोल पाएंगे, जिसने बांधा है वही खोलेगा। हर अंबिया के दौर में आता रहा, कहता रहा, यहाँ तक कि आखिरी रसूल का दौर आया। जब आया तो ये रसूल इस्लाम की खिदमत में हाजिर हुआ और हाजिर होने के बाद इसने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, हमारा हाथ बंधा हुआ है और हम ये चाहते हैं कि हमारा हाथ खुल जाए। हम जो है हर एक अंबिया के पास गए, लेकिन जो है हमारा हाथ नहीं खुला। अभी कही रहा था कि क्या देखा, सामने से एक नौजवान आ रहा है। अब ये घबरा गया कि ये तो वही शख्स है कि जिसने हाथ बांधा था, वो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम थे। और जैसे ही अली रसूल इस्लाम के पास आए, रसूल इस्लाम ने कहा कि अली इसका हाथ खोल लीजिए। बस दकीका कहा, अली इसका हाथ खोल लीजिए। मौला अली ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, एक शर्त है, उस शर्त पे हम हाथ खोलेंगे। रसूल इस्लाम ने पूछा, अली बताइए शर्त क्या है? कहा, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कह दे तो हम इसका हाथ खोल लेंगे। और जैसे ही कहा, जैसे ही हाथ बढ़ाया मौला अली ने, रसूल इस्लाम ने कहा, ऐ अली तुम्हारी ये जो शर्त थी हमारी भी एक शर्त है। अली ने कहा, ऐ रसूलुल्लाह क्या शर्त है? कहा, जब तक ये अमूल वल्लाह रहेगा इसका हाथ नहीं खुलेगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद यानी चाहते हो हाथ खुल जाए, यानी आजाद रहो, असीम न रहो, कैदी न रहो, तो फिर जो है अली वलीउल्लाह कहना पड़ेगा, तब जो है हाथ खुलेगा। अब आप देखें ये जो विलायत की जो नेमत है, अबुल असवद दुआली सबको मालूम है ना, मौलानी के वही
वही थे, चाहने वाले भी कूफा में रहते थे और हर वक्त जो है ये मौला अली का जिक्र करते थे, मौला अली का जिक्र करते थे। उठ रहे हैं तो मौला अली के फज़ाइल, बैठ रहे हैं मौला अली के फज़ाइल, किसी से मिल रहे हैं तो मौला अली के फज़ाइल, चल रहे हैं मौला अली के फज़ाइल, मस्जिद में है मौला अली के फज़ाइल, हर जगह मौला अली के फज़ाइल बयान कर रहे हैं। तो मारिया ने शाम से कहा कि ये जो है सुना है बहुत अली के फज़ाइल बयान कर रहा है, उसे जो है गिरफ्तार करके हमारे पास लाओ, हमारी निगरानी में रहेगा, निगरानी में रहेगा तो फिर जो है ये मसला नहीं होगा। आखिरकार जो है यहाँ गए, जब आ गए, लेकिन उसके बावजूद वही है, उठ रहे हैं तो अली का जिक्र, बैठ रहे हैं तो अली का जिक्र, मिल रहे हैं तो अली का जिक्र, मस्जिद में जा रहे हैं तो अली का जिक्र, हर वक्त जो है ये अली के फज़ाइल बयान कर रहे हैं, अली के फज़ाइल बयान कर रहे हैं। अब लोगों ने उनसे कहा कि देखिए आपने कहा था कि यहाँ बुला लो, हमारी निगरानी में रहेगा, तो फिर मैं इतने फज़ाइल नहीं बयान करेगा, ये तो और जो है अली के फज़ाइल बयान कर रहा, अली के फज़ाइल बयान कर रहा है। तो अब क्या किया, कहा कि ऐसा करो कि इनसे खरीद और फरोख्त बंद कर दो। जब खरीद और फरोख्त बंद हो जाएगा तो जाहिर सी बात है फिर किल्लत होगी, फिर खाने पीने का भी मसला होगा। अब जब ये भूखे रहेंगे, बीवी और बच्चे जब भूखे रहेंगे तो जाहिर सी बात है परेशान होंगे, फिर जो है हम मसाइल आके हल कर देंगे। यहाँ तक कि वजीफा भी बंद कर दिया, तमाम चीजें। अब ये जो है भूखे और प्यासे हैं। अब सुनिएगा बहुत अजीब बात, ये जो है 2-3 दिन से भूखे हैं। अब जब माविया को मालूम हुआ तो माविया ने क्या किया, एक बेहतरीन कहा जो शहद है, ज़ाफ़रान का हलवा, बेहतरीन शहद, मालूम हुआ कि ये जो है मस्जिद में, अबुल हसन दवाई मस्जिद में, अब घर पे एक बच्ची है, बेबी है, तो शहद भेजा। सुनिएगा बहुत अजीब बात, शहद भेजा, कहा कि ले जाओ, ले जा करके जो है उन्हें दे दो। अब जो है उसका खादिम लेकर आया, घर पे दरवाजा खटखटाया, कौन, कहा शहद लेकर आए, कहां से, कहा माविया ने आपके लिए भेजा है, शहद आ गया। अब जो है इधर ये चले मस्जिद से, मस्जिद से चले, उधर जो है सामने शहद। अब बच्ची ने शहद को उंगली से निकाला और ज़बान में रखा। इधर जो है मस्जिद से घर पे पहुंचे, देखा कि बच्ची ने जो है ज़बान में शहद रखा हुआ है, उन्हें मालूम हो गया कि यहाँ से आया। तो वहीं से चिल्ला कर कहते हैं, बेटी ये शहद है। बेटी ने कहा बाबा ये शहद है। कहा नहीं बेटी ये शहद है। कहा बाबा हम खा रहे हैं, हमें मालूम है, आप तो खा नहीं रहे, अभी हम खा रहे हैं, हमारी ज़बान में है, बाबा ये शहद है। तो इन्होंने कहा नहीं शहद नहीं, शहद है। बेटी कह रही है शहद है, बाप कह रहा है शहद है। आखिर में इन्होंने कहा कि बेटी देखो, जो शहद विलायत अली को दिल से छीन ले, वो शहद नहीं शहद होता है, वो शहद नहीं है, वो जो है शहद है। और इसके जरिए जो है वो विलायत अली को खरीदना चाहता है, विलायत अली को खरीदना चाहता है। आप देखिए कि विलायत अली की अज़मत क्या है, फजीलत क्या है। लोग कहते हैं ना कि अरे खतीब जो है मिंबर पे बैठ के जन्नत बांटते, जिसके पास जन्नत होगा वो बांटेगा। सामरानी जवानानी जन्नत है हमारे पास, जन्नत बांटेगा, और जिसके पास जो माल होता है वही बांटता है। मौलाना की विलायत खाने काबा में हुई, रसूल इस्लाम हाथ में लिए और मौला अली तिलावत कुरान मजीद कर रहे हैं, यानी मौला बता रहे हैं देखो जिसके घर में आए उसी का माल बांट रहे हैं। तो ये है। अच्छा एक बात और दकीक में सुनिएगा, अगर मिंबर पे बैठकर खतीब जन्नत की बात करे तो लोग ये कहते हैं देखिए ये जन्नत बांट रहे हैं, अब महबूब ज़मीन पे बैठकर जन्नत बेचे, कुछ नहीं कहते। लेकिन अब आप देखें काबे में इख्तिलाफ है, काबा में कोई इख्तिलाफ नहीं है, कोई इख्तिलाफ नहीं है, हर एक जाता है, हर एक जाता है। अच्छा काबा में 3 मरतबा अलग, वो वाला जो पढ़े तो वो नहीं छोड़ रहे, उसको टच नहीं करते। नकली काबा जो है 3 बार बनाया गया,
समझे आप? अभी भी नहीं पहुंचे। रसूल का आपकी मिसाल खाती की मिसाल, सलवार पढ़िए तो काबे में, उसमें जो है कोई इख्तिलाफ की हालत नहीं आता। ऐसा तो नहीं है कि मसलन जो है देवबंदी जाता है तो बरेली का हम नहीं जाएंगे इसलिए देवबंदी जाता है। ऐसा नहीं है कि मसलन सुन्नी का हम नहीं जाएंगे खाने काबा क्यों इसलिए शिया जाता है, या शिया का नहीं हम नहीं जाएंगे क्यों इसलिए सुन्नी जाता है। बरेली के हम नहीं जाएंगे देवबंदी जाता है, शाफई के हम नहीं जाएंगे बरेली जाता है। ऐसा है? ऐसा नहीं है। वहाँ इख्तिलाफ नहीं है, वो अलग मसला है। यहाँ इख्तिलाफ है, हर जगह इख्तिलाफ है। बरेली की मस्जिद अलग है, देवबंदी की मस्जिद अलग है, शियों की मस्जिद अलग है, सुन्नियों की मस्जिद अलग है। लेकिन जो है वहाँ सब जाते हैं, वो इख्तिलाफ से महफूज है ना। बरेली भी जाते हैं, अहले हदीस भी जाते हैं, देवबंदी भी जाते हैं, शिया भी जाते हैं, सुन्नी भी जाते हैं, सब जाते हैं। और सबका लिबास जो है एक ही है, सफेद लिबास एक ही है। सबका लिबास जो है एक ही होता है, सफेद लिबास है। अच्छा सफेद लिबास पहन के जो है अल्लाह के घर जाते हैं, मरने के वक्त भी सफेद लिबास है। यानी सुनिए बहुत हकीकत, अल्लाह के पास जो है 2 बार जाना है, या तो जिंदगी देकर जाओ, समझ गए, या जिंदा जाओ। नहीं पहुंचे रिश्तेदार को खाने काबा जाओ, जी मर जाओ, फिर अल्लाह के पास पहुंचोगे, थोड़ी तो मौका है। पढ़िए सलवार तो वहाँ जो है कोई इख्तिलाफ नहीं, सब जो है जाते हैं, बरेली भी ये भी, और सब जो है वो जाते हैं। और जो है आप देखें कि मालूम जो ये हुआ कि सफेद लिबास है, सब जो है। लेकिन आप देखें कि जब चक्कर लगाते हैं तो रुकने यमानी के पास रुक जाते हैं, और रुकने के बाद हर शख्स जो है ये चाहता है कि हम बोसा लें। हर शख्स जो है वो चाहता है हम बोसा लें, और ये चाहता है कि हम जो है उस लकीर को देख लें, उस लकीर को, उस निशानी को हम देख लें। हर शख्स जो है वो चक्कर लगाता है, वहीं रुक जाता है। वो अलग मसला है कि अली को माने या ना माने, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि हम खाने काबा नहीं जाएंगे इसलिए कि अली वहाँ पैदा हुए हैं। वही मुसलमान जो है ये नहीं कहता, लेकिन जाकर जो है वही रुक जाता है। वो अलग मसला है, अज़ान में अल्लाह कहे या न कहे, लेकिन जो है वहाँ पे जाकर जो है उसे रुकना है, वो जो है रुक जाता है। तो अब आप देखें कि काबे को किसने बचाया, काबा को किसने बचाया। मुसलमानों को सोचना चाहिए कि ये जो है हुसैन इब्ने अली का एहसान है, हुसैन इब्ने अली का एहसान है। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो हज को उम्रे से बदला। देखिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब तवाफ कर रहे थे तो आप तारीख देखें तो मालूम ये हुआ कि 300 औरतें थी जो मातम करने के लिए जमा गए। इधर 300 औरतें कि खाना काबा को जला दो, हुसैन मार दिए गए, खाना काबा को जला दो, इधर जो है 300, और इधर जो है 300 के हुसैन शहीद कर दिए गए। और लोग इहराम में खंजर छुपाए हुए आए, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब तवाफ कर रहे हैं, बहुत अकीबा गौर से सुनिएगा, जब वो रुकने यमानी के पास पहुंचे, देखिए जो भी खाना काबा में जाएगा इहराम के बाद, और उसे जो है आगे ही बढ़ना है, पीछे नहीं आना है, आगे जो है कदम बढ़ाना है, पीछे नहीं। लेकिन जैसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रुकने यमानी के पास पहुंचे तो 2 कदम पीछे आ गए। जब 2 कदम पीछे आए तो इमाम के चाहने वाले ने कहा कि मौला आप पीछे आ रहे हैं, यानी पीछे नहीं आना चाहिए, मौला आपका कदम पीछे आ रहा है। तो इमाम ने कहा ये न कहो कि हमारा कदम पीछे आ रहा है, बल्कि ये कहो कि काबा बच रहा है। ये कहो कि काबा बच रहा है।
حسین ابن علی کا احسان ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے دشمن کو کس طریقے سے مارا؟ تلوار کے ذریعے، نیزے کے ذریعے نہیں۔ اب آپ کو ایک واقعہ سنا ہے، اسی سے نتیجہ نکلے گا۔ جناب لقمان حکیم، اس کو ذہن میں رکھیے گا، آگے بھی ملا دیں گے۔ جناب لقمان حکیم سب جانتے ہیں، لقمان حکیم بہت بڑے حکیم تھے، اور انہی کے زمانے میں تیمور یا تیمور نام تھا، وہ بھی حکیم تھا، بہت بڑا حکیم، دونوں حکیم تھے۔ تو ایک مرتبہ جو ہے تیمور نے یہ کہا کہ دیکھیے ایک شہر میں، ایک علاقے میں ایک وقت دو حکیم ہو، یہ صحیح نہیں، لہذا جو ہے آپ چلے جائیے، آپ اس علاقے سے، اس شہر سے جو ہے آپ کہیں اور چلے جائیے۔ کہا نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے چلے جائیں؟ کہا نہیں، ایک علاقے میں دو نہیں رہیں گے، لہذا جو ہے آپ چلے جائیے، اور ہم جو ہے جو حکیم ہیں ہم آپ سے بہتر ہیں۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، یہ تو تم کہہ رہے ہو کہ ہم جو ہے بہتر ہیں، لیکن اس کا فیصلہ کیسے ہو؟ تو اس نے کہا کہ دیکھیے ہم بتا رہے ہیں کیسے فیصلہ ہوگا۔ کہا کیا؟ کہا کہ آپ ہمیں زہر دیجئے، حکیم تھے نا دونوں حکیم، کہا کہ آپ ہمیں زہر دیجئے، ہم آپ کو زہر دیں گے، اور جو مر گیا ظاہر سی بات ہے راستہ صاف ہو گیا، جو مر گیا حکیم ہے، اپنا تلکار وغیرہ جو اس کا جو وہ ہوتا ہے کاٹ وغیرہ جو ہوتا ہے اپنا اس سے کریں گے، بچ گئے تو ٹھیک ہے حکیم۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے تب چلو کوئی بات نہیں۔ تو لقمان نے کہا کہ آپ جائے جناب لقمان حکیم، دیکھو وہ بات سب الگ ہے، مثلا کی ہے اختلاف ہے کہ وہ نبی تھے یا نہیں، لیکن بہرحال اس میں اختلاف نہیں ہے، حکیم تھے بہرحال۔ تو لقمان حکیم نے کہا کہ تم زہر دو۔ اب اس نے جو ہے زہر دیا لقمان حکیم کو۔ اب جو زہر دیا تو لقمان حکیم گھر پہ گئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے دوا وغیرہ جو استعمال کیا، جو زہر کا کاٹ ہوتا ہے وہ استعمال کیا، کوئی اثر نہیں، کوئی اثر نہیں ہوا۔ اب اس کے بعد جو ہے لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ لقمان حکیم پہ زہر اثر نہیں کیا، تو بچ گئے، سب کو معلوم ہو گیا کہ بچ گئے۔ تو اسی بھی فیصلہ ہو گیا تھا کہ وہ جو ہے آج یہ جو ہے جیت گئے، فیصلہ تو اسی دن ہو گیا۔ لیکن حسد بہت بری چیز ہے، کینہ جو ہے یہ بہت بری چیز ہے۔ دیکھیں انسان کو کہا تھا کہ حسد اور کینہ جو ہے پہنچا دیتا ہے، اسے تو معلوم ہے ہو گیا، راستہ صاف ہو گیا تھا، خاموش ہو جانا چاہیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ ہمیں زہر دیجیے۔ لقمان حکیم نے کہا نہیں چلے جاؤ چلے جاؤ، نہیں ہوگا۔ کہا نہیں آپ جو ہے آپ بھی زہر دیجیے، ہم اس کا کاٹ نکالیں گے۔ کہا نہیں چلے جاؤ، کہا نہیں ہم نہیں مانیں گے، آپ زہر دیجیے۔ اس نے سوچا کہ ہم بہترین ہے، دوا بنا لیں گے کاٹ کا۔ کہا ٹھیک ہے پھر 40 دن کے بعد آنا۔ سنیے گا بہت تک کی بات، کہا 40 دن کے بعد آنا۔ اب لقمان حکیم کیا کرے، یہ گھر پہ گئے، اب جڑی بوٹی جو ہے اتنے زور زور سے کوٹ رہے تھے کہ جو بھی راستے سے گزر رہا تھا یہ زہر آمادہ کر رہے ہیں، یہ زہر آمادہ کر رہے ہیں، اور یہ جو ہے زور زور سے جڑی بوٹی جو ہے کوٹ رہے تھے۔ اب کوٹنے کی آواز آ رہی تھی، جو بھی گزر رہا تھا وہ سن رہا تھا کہ یہ لقمان حکیم جو ہے بہت خطرناک زہر بنا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ حکیم بھی گزرا، اس نے بھی آواز سنی۔ لوگوں نے کہا کہ دیکھو اب کیا ہوگا، لقمان حکیم جو ہے زہر بنا رہے ہیں، 40 دن کا وقت لیا ہے، اور یہ جو ہے زور زور سے گھر میں کوٹ رہے تھے، پیٹ رہے تھے، یعنی جڑی بوٹی بنا رہے ہیں۔ تو اب جو ہے جب یہ سنا تو ابھی سے اس کو بخار چڑھ گیا، بخار چڑھ گیا۔ جب 40 دن ہو گیا تو بلایا کہ آؤ۔ اب وہ لقمان حکیم کے پاس آیا، تمام مجمع تھا، لوگوں کو معلوم تھا 40 دن میں لقمان حکیم نے زہر آمادہ کیا ہے۔ اب جب بیٹھا لقمان حکیم نے اسے دیا، کہا لو پیو، اور جیسے ہی پیا فوراً جو ہے مر گیا۔ جب فوراً مر گیا تو لوگوں نے لقمان حکیم سے پوچھا کہ یہ بتائیے آپ نے کیسا زہر بنایا تھا؟ کہا ہم نے زہر نہیں دیا، صرف پانی دیا تھا، اور یہ جو ہے مر گیا۔ کہا خوف کی وجہ سے یہ مر گیا۔ اسی طریقے سے امام حسین نے تلوار کے ذریعے نہیں، نیزے کے ذریعے نہیں، بلکہ اپنے خوف کے ذریعے، اپنی فکر کے ذریعے، اپنی سوچ کے ذریعے یزید کہا ہے۔
امام حسین علیہ السلام نے بتا دیا کہ دیکھو تمہارے پاس جو ہے کثرت ہے، ہمارے پاس قلت ہے، تمہارے پاس جو ہے تمام اسلحہ موجود ہے، لیکن ہمارے پاس اسلحہ نہیں بلکہ ہمارا جو ہے گلا موجود ہے۔ امام حسین نے بتایا تمہارے پاس جو ہے تمام چیزیں ہیں، لیکن ہمارے پاس جو ہے آپ اور تمام چیزوں کی قلت ہے، اور ہمارے ساتھ دیکھ لوگ افراد ہیں، یعنی گورے بھی ہیں، کالے بھی ہیں، مہمان بھی ہیں، دیگر اصحاب تمام، یہاں تک کہ شہزادی بھی ہے تو جناب فضہ بھی ہے۔ بتایا امام حسین علیہ السلام نے کہ دیکھو، لیکن امام حسین مختصر جو کاروان اور قافلہ لے کر آئے، کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین کو معلوم تھا، امام حسین کو معلوم تھا کہ نانا کے ساتھ جو ہے کیسے کیسے افراد تھے، امام حسین کو معلوم تھا، دیکھا تھا کہ میرے بابا کے ساتھ جو ہے کیسے کیسے افراد تھے، میرے بھائی حسن کے ساتھ جو ہے کیسے افراد تھے، اصحاب یعنی جو امام حسن علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور امام حسن نے جو لشکر بھیجا 4000 کا، یہاں تک کہ وہی گئے اور جو ہے 4-5 رات میں بک گئے۔ اب آپ سوچیں کہ جو سردار لشکر ہو اور وہ جو ہے بک جائے، ادھر چلا جائے تو کیا ہوگا؟ اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے جو مختصر قافلہ، اور ادھر دیکھا کہ بے شمار ہے، نانا کے پاس بھی، بابا کے پاس بھی، بھائی حسن کے پاس بھی، لیکن ادھر جو ہے منافق تھے، منافق جو ہے وہ زیادہ تھے۔ اور دیکھیں یہ جو منافق ہوتے ہیں نا، جو آپس میں اختلاف ہوتا ہے، جو انجمنوں میں اختلاف ہوتا ہے تو منافق کراتا ہے، جو معاشرے میں اختلاف ہوتا ہے تو یہی جو ہے منافق کراتا ہے، اور منافق جو ہے یہ کیا کرتا ہے کہ موقع پہ ہٹ جاتا ہے، خبر یہ آپ موقع پہ جو ہے ہٹ جاتا ہے، اور منافق جو ہے وہ دو راستہ رکھتا ہے، منافق دو راستہ رکھتا ہے بچنے کے لیے، وہ دو راستہ رکھتا ہے۔ اسی لیے جو ہے یہ ہے قرآن میں بھی ہے کہ اگر جو ہے دل اور زبان ایک ہو تو پھر جو ہے اسی کو عقیدے کی دنیا میں مومن کہتے ہیں، ورنہ اگر دل میں کچھ ہو زبان پہ کچھ ہو تو پھر وہ شخص جو ہے مریض ہے، مریض ہے وہ شخص جو ہے عقیدے کی دنیا۔ زیادہ سخت نہیں ہو رہا ہے، پڑھیے سلوات پڑھیے۔ وہ جو ہے عقیدے کی دنیا میں مریض ہے، یہ جو منافق ہوتا ہے، یعنی منافق جو ہے سامنے سے بہت جو ہے اچھا لگے گا، جیسے یہ دوا آتی ہے نا مچھر مارنے کا وغیرہ کی، اوپر دیکھیے ڈھکنا وغیرہ کتنا خوبصورت رہتا ہے، وہ کتنا رہتا ہے، لیکن جب ڈھکنا کھلتا ہے کتنی بدبو آتی ہے، اسی طریقے سے منافق ہوتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ منافقت یہ تو جانوروں میں بھی ہے، لیکن جو ہے انسان جو ہے یہ سب سے آگے ہے، جانوروں میں بھی ہے تو ضرور مسل ہے نا، لومڑی کی مکاری ہے تو مسل ہے، یا مثلاً جو ہے آپ دیکھ لیں بلی کا یہ بھی ہے کہ کمیندار میں جو ہے بیٹھا رہتا ہے، یہ بھی یہ سب جو ہے ضرور مسل ہے، مثلاً جو ہے لومڑی کی یا مثلاً جو ہے بلی کی، لیکن جو ہے ان تمام چیزوں سے جو ہے انسان آگے بلند دوبارہ۔ یہ امام حسین علیہ السلام کو یہ معلوم تھا کہ جو دور گزرا ہے کیسے افراد تھے، اسی لیے امام نے جو ہے خالص افراد کو چنا، خالص افراد کو چنا۔ اسی لیے امام حسین نے کہا تھا کہ جیسے صحابی ہمیں ملے، نہ نانا کو ملے، نہ بابا کو ملے، نہ بھائی کو ملے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ معلوم یہ ہوا کہ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جو ہے فلسفہ کربلا کو پہچانے کی۔ فلسفہ کربلا کیا ہے، یہ آزادی کیا ہے؟ ملتا ہے کہ ایران اصفہان سے ایک عالم دین آئے یہاں پہ، دارالندوا وغیرہ سب جو ہے دیکھا تھا، دیکھنے اٹھنے کے بعد انہوں نے سوال کیا کہ بتاؤ کہ یہ لائبریری ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، تو پیسہ اتنا کہاں سے آتا ہے؟ کہا کہ شاہ فیصل بھیجتا ہے، وہ تیل وغیرہ کی کمائی وغیرہ جو ہوتا ہے اس میں سے کچھ ادھر بھیجتا ہے، اور ہم جو ہے اس کے ذریعے تبلیغ کرتے ہیں۔
का तबलीग करते हो, वो इतना पैसा भेजता है तो उसके एवज में क्या मिलता है, उसे क्या देते हो? कहा कि देखिए हम जो है साल भर मेहनत करते हैं, लेकिन जब रोज़े आशूरा आता है तो साल भर की मेहनत जो है एक दिन में बर्बाद हो जाता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तो आप देखें कि आज़ादारी की अजमत क्या है, फजीलत क्या है। जाहिर सी बात है कि जो हकीकी आज़ादार होता है वो जो है पैगाम करबला को पहुंचाता है कि देखो हमेशा जो है मजलूम का साथ देना, मजलूम का साथ देना। वो अलग मसला है कि मसला जो है कुछ हुआ तो लोग ये कहते हैं कि ये जो है दहशत गर्द है, मिसाल देते इसको, मिसाल के तरीके कि दहशत गर्द है। अब बताएं आप कि अगर जो है बुजुर्ग ज़्यादा है और यहाँ पे मसला है, लेकिन वतन वगैरह में जो है बहुत से जो है ऐसी हरकत किए होंगे, ऐसा नहीं है, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है कि देखा होगा कि चिड़िया परिंदा जो है घोंसले में होता है और लोग जो है हाथ डाल के निकालते हैं उसके बच्चे को या उसे। अब अगर जो है उसके घोंसले में हाथ डालें और वो चिड़िया जो है चोंच मार दे तो फिर सोच करें कि जितनी चिड़िया है सब दहशतगर्द है। ये सलवात पढ़िए। ये हुआ कि आपने जो है ऐसी हरकत किया। अब आप देखिए कि यही जो है आज़ादारी है कि जाहिर सी बात है कि इससे जो है पैगाम में करबला मिलता है और लोग जो है इसी आज़ादारी को देखकर, इसी आशूरा को देखकर लोग जो है इस मजहब के तरफ खींचते हुए आ रहे हैं। तो हाँ जिन्होंने मोहतरम पढ़ेंगे 15 मिनट पढ़ेंगे। तो अब आप देखें कि मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया जनाब अकील से, बात बहुत अकील कह रहे, जनाब अकील से कहा, क्या कहा कि भाई अकील कोई ऐसा खानवादा देखिए जो बहादुर हो। गौर करते हैं, लेकिन जुमले से जुमला निकालना हमारा काम है। कहा ऐसा खानदान देखिए जो बहादुर हो, ये नहीं कहा कि ऐसी औरत देखिए जो बहादुर हो। अगर ये कह देते तो फिर लोग दलील बना लेते, फिर जो है औरत को सर पे बिठा लेते। अरे पढ़िए सलवात। बहादुर औरत देखो, कहा कि बहादुर खानदान देखो, ये कैसा बच्चा हो कि जो करबला में हुसैन के काम आए। आप देखें यही जो है हजरत अब्बास की निशानी है कि जितने भी मुस्लिम सब अलमदार थे, आदम भी अलमदार थे, लूत भी अलमदार थे, मूसा भी अलमदार थे, ईसा भी अलमदार थे, जितने भी अंबिया गुजरे सब अलमदार थे, मौला कायनात भी अलमदार थे। लेकिन अगर अलमदार कहा जाए तो शहर में कौन आता है? हजरत अब्बास। ये महसूस हो गया है, सब अलमदार थे, हर एक ने अलम उठाया, लेकिन जो है ये महसूस जो हुआ हजरत अब्बास से। तमाम अंबिया जो है सब वफादार थे, आदम भी, नूह भी, मूसा भी, ईसा भी, सब वफादार थे। लेकिन जो है लफ्ज़ वफा आता है, ये लफ्ज़ भी इससे महसूस है हजरत अब्बास से। सबने जो है जिगर ने खुद मौलाए कायनात ने अलम को पत्थर पे गड़ा है। ये कहूँगा मौला पत्थर पे अलम गाड़ना और है, पानी पे अलम गाड़ना और। हर एक ने अलम उठाया, मौलाए कायनात ने अलम उठाया और रसूल इस्लाम ने फरमाया अपना मंजर अपने शहर में खींच लीजिएगा, खैबर का खींच लीजिएगा, इशारा कर रहे हैं। और मौला अली गए और जाने के बाद जो है पत्थर पे अलम उगाड़ा।
जा रहे थे और रसूल इस्लाम ने फरमाया कि कल मैं उसको दूंगा, अलग कल उसको। या मालूम ये हुआ कि इसके पहले जो ले जा रहे थे वो अलग नहीं था, वो अलग नहीं था। अब जो है अच्छा पहली बात तो मान लेना चाहिए था, इसलिए गुरुबारी होनी चाहिए था कि रसूल इस्लाम ने जब कह दिया कि इस दिन फतह होगा तो दौड़ने की जरूरत ही नहीं थी, मालूम हो गया था। लेकिन बात आगे बढ़ जाएगी। अब मौला अली गए और जाने के बाद अलम को पत्थर पे मारा तो बालक भी घबरा गया कि कौन आ गया। अब तक जो मसला हम उतरते ही नहीं थे, नीचे जाते ही नहीं, हवा चलती थी मरहब आया भाग जाते थे। लेकिन ये कौन आ गया कि आपके साथ ही अलम को पत्थर पे गाड़ दिया, अलम को पत्थर पे गाड़ दिया। अब जब निकला जाहिर सी बात है अपने भाई को भेजा, अपने भाई को भेजा, फिर जो है खुद आया मैदान में, वो भी वासिल हो गया, खुद भी मैदान में आया। जब खुद मैदान में आया तो वही है ना इब्लीस साहब ये मिल गए। अब ये जो वापस जाने लगा, कहाँ जा रहे हो? कहा कि इसलिए कि हमने जो है ख्वाब देखा था। सुनिए ना बहुत अजीब बात, कहा कि एक मरतबा हमने जो है बचपन में ख्वाब देखा था और ये देखा था कि शेर जो है हमला कर रहा है। तो ये ख्वाब हमने अपने माँ से बयान किया। जब माँ से बयान किया तो माँ ने कहा कि बेटा हैदर नाम शख्स से न लड़ना। यहूदी भी जब ख्वाब में शेर को देखता था तो वो भी जो है हैदर ही समझता था। अब जा रहा था, कहा चले जाओगे तो फिर तुम्हें रहनुमा कायद कौन बनाएगा, पलट जाओगे कि जो चला जाए मैदान से। यानी यहूदियों का भी मेयार था कि जो मैदान से भाग जाए फिर वो जो है लश्कर नहीं है, लश्कर का सरदार नहीं बन रहा है, उनका भी एक मेयार था। बहरहाल मुख्तसर ये कि ये आया और आने के बाद जो है ये भी दो हिस्से में तस्लीम हो गया वासिले जहन्नम। तो अब आप देखें कि हर एक ने अलम उठाया, लेकिन जो है अगर कोई जन्मदार है वो जो है हजरत अब्बास है। आप देखें कि आपको पूरी दुनिया में दो निशानी हर जगह मिलेगी। एक जनाबी मुस्लिम की निशानी जो खाने काबा की तरफ करके सलाम किया था, और दूसरी निशानी यही अलम। आप देखने की हो सकता है कि जुलूस में ताबूत न हो, ताजिया न हो, झूला न हो, लेकिन जब जुलूस निकलता है तो अलम जरूर होता है। अलम जरूर, दो निशानी हजरत अब्बास की निशानी आप देखें कि कहीं भी चले जाएं और अगर जो है जुलूस निकला हुआ है तो हजरत अब्बास की निशानी होती है। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, आप देखें कि एक शायर था और उसने जो है अशार में ये दूसरा कहा कि रोज़े आशूरा इमाम हुसैन ने अब्बास से पनाह, उनकी पनाह रोज़े आशूरा। जब ये शेर कहा तो रुक गया, रोने लगा कि हमने जो है इमाम हुसैन की शान में गुस्ताखी कर दी। तो ये जो है इमाम है और उनकी अब्बास की पनाह में इमाम थे, लिहाजा जो है रोने लगा और कहा कि हमने जो है ये गलत कर दिया। सो गया, रो रहा था, रोते रोते सो गया। जब सो गया तो फिर जो है ख्वाब में इमाम हुसैन आए और आने के बाद कहते हैं कि जितना तुमने मिसरा कहा है तमाम मिसरों में जो है यही मिसरा हमें पसंद है कि तुमने जो ये कहा है। तो देखो आगे बढ़ा लो कि हम जो है रोज़े आशूरा अब्बास की पनाह में थे। फिर फरमाया कि रोज़े आशूरा में इतना दर्द हुआ था, प्यास की शिद्दत थी कि दिन में जो है ऐसा मालूम हो रहा था कि रात हो गई, यानी दिन में जो है वो रात नजर आ रहा था और रात में जो है कमरी चांद कमरी जो है वही रोशनी पहुँचाता, उसी से जो है इस्तेफाद होता है। हाँ बिलाल मुहर्रम आज मुहर्रम की 8 तारीख की शब 8 है और रोज़े आशूरा करीब है। ये अय्याम जो है
गुजर रहे हैं और मौला का ना हो सका, हम उस तरीके से न रो सके, हम उस तरीके से मातम न कर सके। आज इधर होकर आपको वाक़िया सुना उसके बाद मिसाइल पड़ी कि मुजद्दिद साहब मौलाना इशा अली साहब सहाब तो एक शख्स था, आप ये सब जानते होंगे वतन वगैरह में चौक होता है, हिंदू वगैरह भी चौक से ताजिया रखते हैं, सब आशुर ताजिया रखते हैं, चौक होता है उससे खुला हुआ। तो एक शख्स था, एक हिंदू था, वो जो है ताजिया चौक पर रखता था, चौक था और करीब में कुछ फासले पे उसका घर था। तो 30-35 साल पहले सर्दी भी शदीद थी, सर्दी और बारिश भी हो रही। वो हिंदू था, गरीब था और परेशान हुआ, क्या करें। अब वो जो है उनके पास आया, उनने सुना, उनकी ज़बानी थी, उसी वक्त जब सुना तो तभी हमने जहन में बैठा लिया था कि बहरहाल हम इसे जो है कहीं न कहीं मजलिस में जिक्र करें। तो इन्होंने ये कहा कि क्या बात है, कहा कि देखिए बारिश हो रही है, इतनी सर्दी है और हम बूढ़े भी हैं, हर साल ताज़िया भी रखते हैं, बारिश हो रही है, क्या करें, ऊपर तो कुछ है नहीं। इन्होंने कहा कि कोई घबराने की बात नहीं, ऊपर जो है शामियाना वगैरह प्लास्टिक वगैरह इस तरीके से बांध दो और ताज़िया रख दो, और देखो सर्दी है शदीद, बारिश भी हो रही है, तुम यहाँ चौक पे ताज़िया रख दो और तुम घर के अंदर आराम करो। उसने कहा कि मौलाना हम इमाम हुसैन को तनहा नहीं छोड़ेंगे, हम जो है हुसैन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। हाँ दादा, वही हुसैन इब्ने अली करबला के मैदान में तनहा। ऐसा वक्त आया कि हज़रत अब्बास जो है करने के तलाश फिर रहे हैं, हर एक को इत्मीनान भारत कि हज़रत अब्बास है। यहाँ तक कि एक मरतबा जनाब ज़ुहैर ने कहा, अब्बास आपको मालूम है आपके बाबा ने जो दुआ की थी क्यों आपके लिए? अब्बास ने कहा कि ज़ुहैर इस वक्त जो है गुफ्तगू का वक्त नहीं है, लेकिन चूंकि आपने बाबा का नाम ले लिया है लिहाजा कहिए क्या कहना चाहते हैं। कहा कि आपके बाबा ने दुआ की थी और इसी दिन के लिए मकसद में ये है कि जैसे ही ये कहा हज़रत अब्बास ने तस्मा टूट गया। कहा ज़ुहैर आप हमें जोश दिला रहे हैं, आप अपनी इजाजत देने दीजिए, देखिए फिर जो है हम मैमना और मैसरा पे टूट पड़ेंगे। हाँ दादारो, यही हज़रत अब्बास है कि जब भाग्य शख्स था, जब सामने आया और चाहता था कि हज़रत अब्बास पे हमला करे, तो हज़रत अब्बास ने क्या कहा कि जब तो सही कि हम तुम्हें तुम्हारे ही नेज़े से मारे। और हज़रत अब्बास ने उसका नेज़ा छीना और उसी के नेज़े से उसे मारा। ये है हज़रत अब्बास। हर एक को ढालस है, किसी को कोई काम हो आवाज देता है अब्बास, ज़ैनब को कोई काम हो आवाज देता है अब्बास, हुसैन को कोई काम हो हर एक अब्बास को आवाज दे रहे हैं। और यही अब्बास है कि इमाम हुसैन ने वलीद के दरबार से यहां तक रोका, अब्बास अभी नहीं, आखिरकार वो वक्त भी आ गया, मैदान करबला वो वक्त भी आ गया। हज़रत अब्बास इजाजत मांगते हैं, इमाम हुसैन इजाजत नहीं दी, कहते कि अब्बास तुमको लश्कर किया रखना। अब जनाब अब्बास ने कहा कि आका अब वो लश्कर कहाँ की बस्ती वाला, अब खैमे से आवाज आई, आलताश आलताश। अब इमाम ने सोचा है कि अब इस जरिए से इमाम ने कहा बात जाओ बच्चों के लिए पानी का सबील करो। हज़रत अब्बास खैमे में आने के बाद आवाज देते हैं सकीना मत गिराओ।
सकीना मश्क लाई। शहजादी ज़ैनब ने अब्बास को देखा, आंखों से आंसू जारी हुए, रोने लगी। हज़रत अब्बास घबराए, सवाल किया, कहा अब्बास एक लम्हे के लिए रुक जाओ। अब्बास, मैं 30वीं माह रमजान को मेरे पापा ने कहा था, ए बेटी ज़ैनब, एक वक्त ऐसा आएगा कि बाजू में रस्म बांधी जाएगी। अब्बास, मेरे बाबा ने कहा था, मुझे यकीन था, लेकिन मैं सोचती थी कि अब्बास जैसा भाई हो तो किसमें मजाल है, किसमें हिम्मत है कि जो बाजू में रस्म बांधे। बाबा ने कहा था, मैं सोचती थी, लेकिन अब्बास सच कहा कि अब्दुल मोमिनीन, अब्बास मेरे बाबा ने सच कहा था। अब्बास जाओ जाओ, अब मुझे यकीन हो गया कि बाजुओं में रस्म बांधी जाएगी। ये अदादारों, हजरत अब्बास निकले, घोड़े पर सवार हुए, फुरात की तरफ चले। लश्कर था, किसी में मजाल नहीं जो अब्बास को रोक दे। आए नशेब में, फुरात के पास आए, मश्क सकीना को भरा। अब भरने के बाद जब नशेब से बलंदी की तरफ आ रहे थे, इधर जो है सकीना देख रही थी। तमाम बच्चे जो है इस मंजर को देख रहे थे और बच्चे एक दूसरे से कह रहे थे, बच्चों आप घबराओ नहीं, अब पानी आ जाएगा। बीवियां घबराए नहीं, पानी आ जाएगा। सकीना बच्चों से कह रही, घबराओ नहीं, मेरा सत्ता आ रहा है, मेरा चचा आ रहा है। बच्चे देख रहे हैं, अलम धीरे धीरे बुलंदी की तरफ आ रहा है। बच्चे खुश हो रहे हैं, अब पानी आएगा, मेरा चचा आ रहा है, मेरा चचा आ रहा है। बच्चों ने क्या मंजर देखा कि अलम को झटका लगाया। बच्चे घबराए, दिल घबराया, फिर अलम समझ गया, फिर अलम को झटका लगा, फिर बच्चे घबराए, फिर अलम संभल गया। फिर थोड़ी देर के बाद अलम नजर नहीं आया। ये अदादारों, एक जालिम ने ऐसा हमला किया, हजरत अब्बास का दायां बाजू कलम हुआ, फिर हमला किया, बायां बाजू कलम हुआ। एक मलून ने जो तीर चलाया, लश्कर सकीना पे लगा, अब्बास की आंख टूट गई। ए अदादारों, एक मलून ने ऐसा वार किया दूसरे सर अब्बास पे कि अब्बास घोड़े पे जमीन पर गिरे, पेशानी चूर चूर हो गई। ए अदादारों, वहीं से अब्बास आखिरी फिक्रा, वहीं से हजरत अब्बास ने कहा कि आका मौला, मेरा आखिरी सलाम कबूल कीजिए। ए अदादारों, हसन शहीद हुए, लेकिन इमाम हुसैन ने ये नहीं कहा कि आज मेरी कमर टूट गई, लेकिन जब अब्बास शहीद हुए, इमाम हुसैन ने कमर पकड़ी, ला इलाहा इल्लल्लाह। ए भैया अब्बास, आज मेरी कमर टूट गई। आज अदादारों, बस आखिरी फिक्रा, इधर हुसैन चले। आए आए भाई अब्बास के पास, हजरत अब्बास के सर को अपने सानू पे रखा। जब सानू पे रखा, इमाम ने देखा, आंखों से आंसू बह रहे हैं। इमाम ने सवाल किया, ए अब्बास, अब्बास ये बताओ रो क्यों रहे हो, क्या मसला है? अब्बास ने कहा कि आका, आज मेरा सर आपके जानू पे, लेकिन आपका सर किसके जानू पे होगा? भैया अब्बास, फिक्र न करो, आज अदालत बस आखिरी फिक्रा पड़ चुका। अब जो है अलम लेकर इमाम हुसैन चले, अब जो अलम लेकर चले, बच्चों ने देखा, कहा चचा आ रहा है, चचा आ रहा है। अब जो हुसैन नहीं पहुंचे, बच्चों ने देखा, सिर्फ अलम है, लेकिन अब्बास
किया, तूने हंसे हंसे मगर हम शहादत का किया, न कर सका मैं करबला में तेरी मेहमानी, न कर सका मैं करबला में तेरी मेहमानी, न मिल सका है तुझे